Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Play Microbiology. In this lecture we will discuss about the different methods of identification of bacteria. So first of all, the thing is, what do you mean by identification of bacteria? Okay, it means you have a specimen. Okay, now you have to identify which bacteria resides in this specimen. Okay, कौन सा बैक्टीरिया स्पेसिमेन के अंदर है, तो इसको जानने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स विच वी यूज. फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल मेथड, सेकंड वन इज ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर मेथड. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल मेथड, first thing I want to make clear here, like we will discuss what are the steps, what are the protocols from the starting, like you received a sample and what would you do with the sample at first hand. Okay, so first thing is you receive a specimen. Okay, you receive specimen. Now you will label it properly and you will enter the details of this specimen in register or in any paper that you have. Next thing is separation. After receiving a specimen in bacteriology, okay, laboratory where we identify bacteria is known as bacteriology. So after getting your specimen in bacteriology laboratory, you will separate it. What does it mean by separation? Separation means you have variety of specimen, maybe you have urine, maybe you have pus or any other sample. So what you will do, whatever specimen you have like urine, then you will separate all the boxes of urine to one side. Then you have pus, then you will separate all the containers of pus to different side. Okay, so after separating, what we will do next is we have to follow two things. Okay, first one is we will prepare wet mount from that specimen or KOH mount. Okay, or we will do staining. These three things are known as direct microscopy. This is called direct microscopy. Means you receive a specimen, you just enter it, separated it, and now what you have to do, from that specimen you will do direct microscopy with the help of wet mount, KOH mount or staining. What is wet mount? Wet mount means, for example, you have a container of urine. Now what you will do, from this urine you will take out one drop and put that one drop on a slide. Okay, and then put a cover slip on this drop. Okay, तो ये इस तरीके से spread हो जाएगी. Now just view it under a microscope at 40 lens. Okay, 40x पे आप देख लोगे इसको. Next thing is KOH mount. KOH mount जो होता है ना, ज़्यादातर पस वगैरह से हम करते हैं. जो पस होता है, पस सैंपल, उनका हम ज़्यादातर KOH माउंट करते हैं. पस हो गया या फिर जो HVS आता है, ठीक है, हाई वजाइनल स्वैप्स, इनका भी KOH माउंट किया जाता है. KOH माउंट में हम क्या करते हैं, फिर से जो भी हमारा स्वैब है, ठीक है, स्वैब से हम स्लाइड पे एक छोटा सा स्मेयर बना लेंगे. स्मेयर बनाने के बाद इसमें एक ड्रॉप हम KOH का डाल देंगे, वन ड्रॉप, ठीक है, और फिर से ऊपर से हम इस पे कवर स्लिप रख देंगे और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे. सो दिस इज वेट माउंट एंड अनदर वन इज KOH माउंट. नेक्स्ट वी हैव स्टेनिंग. There are three different type of stainings that are routinely followed in bacteriology. First one is Gram stain. Second one is Albert stain. Third one is Zeldin-Nielsen. Zeldin-Nielsen stain. Okay, Zeldin stain या फिर acid fast staining जैसे आप बोलते हो. So these are three routinely followed stainings. अब स्टेनिंग कैसे करनी है, सिंपल, जो भी हमारे पास स्पेसिमेन आए, यूरिन की स्टेनिंग नहीं होगी बस, ठीक है, यूरिन को छोड़ के. जैसे कोई स्वैब आया है हमारे पास, तो जो भी हमारे पास स्वैब आया है, स्वैब का हम क्या करेंगे, उसी स्वैब से हम स्मेयर बना लेंगे. डायरेक्ट स्मेयर बनाने के बाद उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे. ड्राई होने के बाद उसको हीट करेंगे और फिर जो भी हमारा स्टेनिंग हमने करनी है वो कर देंगे.
This is the simple method. So first, after receiving specimen, first you will do entry, then you will separate the specimens. थर्ड स्टेप यू विल डू इज द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम 3 तरह से डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं. वेट माउंट हो गया, KH हो गया और स्टेनिंग हो गया. ओके, आफ्टर दिस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट द suitable culture methods for each specimen. Now what does it mean by suitable culture methods? For example, let me rough it first. Okay, so now what we will do, we have done direct microscopy. Okay, now we will take out the cultures. Okay, so for example, if you have specimen urine, then you will use culture media CLED. But you will use CLED culture media you will use for urine. Okay, if you have pus, then you will use blood agar, McConkey agar and BHI. Blood agar, McConkey agar, brain heart infusion. For pus, another sample or another specimen that we receive in laboratory is CSF or body fluid. So for CSF or body fluid, you will use blood agar, McConkey agar and BHI again. Third one we have, sorry, first, second, third. Another sample that we receive in laboratory is sputum. Okay, these are routinely, like, you will find out every day. These samples are every day find out in the laboratory. Sputum, and sputum we use different culture media such as blood agar, McConkey agar and chocolate agar. Fifth we have blood. If you receive a blood sample, then you will inoculate this blood sample into blood agar, McConkey agar and chocolate agar. Sixth we have, okay, swab. For example, HVS, okay, high vaginal swab. So we will inoculate this swab into blood agar, McConkey agar and again chocolate agar. Okay, stool. If you have stool, then you can inoculate that stool into chocolate agar, blood agar or XLD. Okay, so these are the routinely found specimens and these are the routinely used culture medias in bacteriology. So I think you have heard about these culture medias lot of time, but what about this? Have you ever heard about it? So this is CLED and definition of this CLED is cysteine, lactose, electrolyte deficient. Okay, this is the culture media that is routinely used for identifying pathogens present in the urine. Now, why it is electrolyte deficient? Electrolyte deficient means it will have cysteine, it will have lactose, but it would not have electrolytes. It lacks electrolytes because in urine sample you can easily found Proteus, right? And what Proteus do? It performs swarming in your culture media. So this electrolyte deficiency inhibit the growth of this Proteus swarming. That's why we use a CLED whenever there is a urine sample. Okay, and what I can say, it is like they are in different colors, they are available in different colors, and mainly जो lactose fermenters होते हैं, for example E. coli, तो वो इसमें जो येलो कलर की कॉलोनीज बनाते हैं, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं वो इसमें ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाते हैं. ठीक है, क्लैड में. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लैड. यू मस्ट नो अबाउट दिस कल्चर मीडिया बिकॉज इट इज when you will enter in laboratory in microbiology especially, the first question our senior would ask you is about the CLED, because it is something that is not discussed in the classrooms,
बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया। एंड लाइक जब मेरी इंटर्न स्टार्ट हुई थी तो मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज क्लेड, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज इट। सो येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये पढ़ना है क्लेड। और ये सारे बाकी के मतलब ये जो है ये रूटीनली यूज़ होते हैं, ठीक है, ये कल्चर मीडियाज, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए एटलीस्ट इनको तो अच्छे से रट्टा मार दूंगा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव डिसाइडेड ऑल द कल्चर मीडियाज एंड वी हैव स्ट्रीट द स्पेसिमेन, है ना। कल्चर मीडिया के साथ रखोगे तो ना, कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसे यूरिन है तो क्लेड लेंगे और क्लेड में इसकी स्ट्रिकिंग कर देंगे ऐसे करके, है ना, स्ट्रिकिंग कर देंगे। अब स्ट्रिकिंग करके इनको ओवरनाइट इंक्यूबेशन में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इंक्यूबेशन। ओके, इंक्यूबेशन का मतलब ये है, शाम को ही ज़्यादातर कल्चर मेथड्स पे स्ट्रिकिंग की जाती है, पूरी रात रख दिया जाता है इंक्यूबेशन में, वही 24 आवर्स का इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन के बाद अगले दिन जब आप आओगे तो नॉर्मली सभी पर ग्रोथ आ चुकी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग दैट आफ्टर इंक्यूबेशन इज डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ, डिटेक्शन ऑफ colonies. You will look at the colonies, you will look at the hemolysis in the colonies. Okay, you will find out which type of colonies are they large, small, और लाइक साइज आप उनमें देखोगे, पिन हेड है, पिन पॉइंट है, या फिर कलर्ड है, कैसी लैक्टोज फर्मेंटर है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ये सब कुछ आप देखोगे। और फिर उसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज को मार्क कर लिया जाए। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे हमारी पेट्री प्लेट है, ठीक है, जिसमें हमने एक दिन पहले स्ट्रिकिंग की थी, है ना। स्ट्रिकिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम पहले वेल बनाते हैं, प्राइमरी स्ट्रिकिंग करते हैं, ठीक है, फिर सेकेंडरी स्ट्रिकिंग करते हैं, उसके बाद टर्शरी करते हैं, और उसके बाद क्वेटरनरी, ठीक है। तो अब इसमें जो होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, सेकेंडरी में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ होती है, लेकिन जब तुम टर्शरी वाले में आते हो ना तो दूर दूर ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, और क्वेटरनरी में भी बहुत कम होती है। तो यहाँ से कहीं से हम ना प्रॉपर ग्रोथ जो होगी एक कॉलोनी को पिक करते हैं, ठीक है, जो कि ना तो कमेंसल हो, ये भी देखना पड़ता है। ज़्यादातर जो लार्ज कॉलोनीज होती है ना वो कमेंसल होती है, ठीक है, हमें बहुत ध्यान से कोई एक कॉलोनी पिक करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली कॉलोनी पिक की, अब हम इस कॉलोनी को पिक करके क्या करेंगे, इसको पेप्टोन वाटर में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, पेप्टोन वाटर में, ठीक है। अब इस पेप्टोन वाटर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं स्लाइड्स, ठीक है, स्मेयर बनाएंगे इस पेप्टोन वाटर की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे स्मेयर। तो स्मेयर में हमने ग्राम स्टेन करनी है पहले, ठीक है, स्मेयर बनाएंगे, ग्राम स्टेन करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा ग्राम स्टेन होगी, या जो भी करेंगे स्टेनिंग वो करेंगे स्मेयर बनाने के बाद। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्राम स्टेन की, तो ग्राम स्टेन में हम क्या देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है, या फिर ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो हमें ग्राम पॉजिटिव दिख रहा है माइक्रोस्कोपी में, तो हम इसमें फिर बायोकेमिकल टेस्ट लगा के देखेंगे। जैसे ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें हम कैटालेज लगा लेंगे, ठीक है। अगर कैटालेज पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर कैटालेज पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसमें लिख लेते हैं। अगर कैटालेज जैसे पॉजिटिव है तो वो स्टेफाइलोकोकस होगा। अगर वो कैटालेज नेगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कैटालेज हमारा नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम इसमें कोएगुलेज टेस्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राम पॉजिटिव का जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ग्राम नेगेटिव है फिर तो बहुत लंबा काम है, तुम्हें एक दिन का और वेट करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रिकिंग करके पहले हमने 12 घंटे का वेट किया, 12 से 24 घंटे का। अब ग्राम पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारे पास उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। अगर ग्राम नेगेटिव आ गया माइक्रोस्कोपी में तो अब तुम इसमें भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लगाओगे। इसमें तो बहुत सारे लगते हैं, MR, BP, बहुत सारे लगेंगे इसमें, ठीक है। वो IUCT ऐसे करके होते हैं ना, वो वाले, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कैसा था, मैं भूल गई, है ना, ठीक है। इंडोल वगैरह वो सब लगेंगे, इंडोल, सिट्रेट, ठीक है, सारे ट्रिप्टोफेनेज सब लगाएंगे अब हम इसमें अगर ग्राम नेगेटिव आ गया तो। क्यों, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बैक्टीरिया है। उसमें पता करते हैं ना, अगर इंडोल पॉजिटिव है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, नेगेटिव है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा। एक पूरा चार्ट रहता है लैब में, ठीक है, पूरा चार्ट रहता है। उसमें यहाँ पे बैक्टीरिया लिखे होते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं, साथ में इधर की साइड बैक्टीरिया रहते हैं, यहाँ पे सारे टेस्ट लिखे होते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे कौन सा वाला, अगर ये पॉजिटिव है ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट, तो ये कौन सा बैक्टीरिया होगा, अगर ये नेगेटिव है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, उस चार्ट में दिया होता है।
उस चार्ट से कंपेयर करने के बाद हम हमारा टेस्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इसमें, ठीक है। अब जब हमें ये पता लग गया कि ये फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास आ गया, ये जो हमारा बैक्टीरिया है स्पेसिमेन में ये स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। तो अब क्या करोगे पता लगने के बाद? ऐसी थोड़ी ना दे दोगे कि लॉजिक तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, अब कर लो जो करना है, ऐसा नहीं होता। स्टेफाइलोकोकस अगर आया है तो उसके बाद हमारा जो मेन मोटिव है वो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी में हम इतना काम कर रहे हैं ना उसका मतलब ही क्या है, उसका जो एंड रिजल्ट है ना वो ये होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स का पता करना है कि अगर ये वाला स्पेसिमेन है तो इस पे कौन सी एंटीबायोटिक काम कर रही है, ठीक है। ये एंड रिजल्ट होता है किसी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब का। अब हमारे पास आ गया स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस के ग्राम पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसका AST लगाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे हमने पेप्टोन वाटर बनाया था ना, यहाँ पे आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब हमने इसी पेप्टोन वाटर से क्या करना है, अगर पॉजिटिव आ गया तो हमने हमारा AST एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट लगाना है। इसमें हमने म्यूलर हिंटन अगार ले लेना है, 2 बैटरी प्लेट लेनी है म्यूलर हिंटन अगार की, ठीक है। उसमें इस पेप्टोन वाटर से यहाँ पे लॉन कल्चर बना देना है, ठीक है। दोनों में लॉन कल्चर बनाने के बाद इसमें हम लगाएंगे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं AST, इसमें हम जो सुटेबल एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि अगर स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव होता है तो हमारे पास पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स होती है। अगर पॉजिटिव है, स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव है तो उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक्स हमने लगानी है, अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक्स लगानी है, ठीक है। तो वो वाली एंटीबायोटिक्स अब हम यहाँ पे लाके इनोकुलेट कर देंगे। 6 रखते हैं, एक बीच में, एक यहाँ पे, एक ऐसे करके हमने 6 एंटीबायोटिक्स लगा देनी है, ठीक है। दोनों में मतलब कम भी हो सकती है लेकिन 6 से ज़्यादा एक प्लेट में नहीं लगाते। तो 6 एंटीबायोटिक्स की जो डिस्क है वो हमने लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आके हम इनमें देखेंगे कि कितनी सेंसिटिविटी है, यानी कि जितना बड़ा इसके आसपास हेलो होगा, है ना, गोल सा चक्कर होगा, उतना ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए ससेप्टेबल है, यानी कि वो वाली एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर वो देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं, इतनी जो खिचड़ी पका रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये है कि हमें पता लगाना है कि हम कौन सी एंटीबायोटिक बंदे को दें वो ठीक हो जाए उसे खा के, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या है, AST आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कब होता है, पहले हम कल्चर लगाएंगे, ठीक है। कल्चर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स लगाते हैं। तो बायोकेमिकल्स भी एक लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप के बाद सेकेंड लास्ट स्टेप है बायोकेमिकल, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा AST। तो ये होता है सारा जो हम आइडेंटिफिकेशन, एक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता है, ठीक है। प्रॉपर जो एक प्रोटोकॉल है जो लैब में फॉलो किया जाता है वो यही है कि सबसे पहले स्पेसिमेन आएगा, आप उसको एंट्री करोगे, ठीक है, उसका लेबलिंग करोगे अच्छे से, उसका क्वांटिटी भी चेक होती है कि ये प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो उसको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका कल्चर लगाओगे, कल्चर लगाने के बाद उसको आप 12 घंटे के लिए इंक्यूबेशन रखोगे। इंक्यूबेशन में रखने के बाद अगले दिन आके आप मतलब पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करोगे, फिर कल्चर लगाओगे, उसके बाद इंक्यूबेशन करोगे। इंक्यूबेशन के बाद आप कोई एक प्रॉपर कॉलोनी मार्क करोगे, ठीक है। कॉलोनी मार्क करने के बाद आप उसको पेप्टोन वाटर में डालोगे। पेप्टोन वाटर में डालने के बाद उसका स्मेयर बनाया जाएगा। स्मेयर बनाने के बाद देखा जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस लगाए जाएंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस लगाने के बाद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन वर्क कर रही है इस बैक्टीरिया पे। अगर हम ये मेडिसिन चलाते हैं तो पेशेंट ठीक होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सारा मेथड जो हमने अभी पढ़ा है ये सारा आता है कन्वेंशनल मेथड में, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर किस में आता है, कन्वेंशनल मेथड में है। ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सेपरेशन से लेके AST तक का, ये है तुम्हारा कन्वेंशनल मेथड। अब अगर बात करें ऑटोमेटेड कल्चर मेथड्स की, तो ऑटोमेटेड कल्चर मेथड में सबसे पहले वही होगा, स्पेसिमेन आएगा, उसको आप सेपरेट करोगे, ठीक है, लेबलिंग करोगे, सेपरेट करोगे, कल्चर लगाओगे, 12 आवर का इंक्यूबेशन दोगे, नेक्स्ट डे आओगे,
नेक्स्ट है सिमिलर कॉलोनी को पेप्टोन वाटर में नहीं डालोगे, ठीक है। अब कॉलोनी पेप्टोन वाटर में नहीं डाली। अब जो हमारी कॉलोनी है उसको हम ऑटोमेटेड कल्चर मेथड्स में क्या करते हैं, ऑटोमेटेड कल्चर मेथड्स में जो अभी तक हम जो यूज करें ना वो मालदी मशीन है, ठीक है। मालदी टॉफ ये मशीन है, बैक्टेक है, ठीक है, जो तुम्हें नॉर्मली जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं उनमें मिल जाएगा बैक्टीरियोलॉजी में। और इसके बाद एक हमारी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटेड एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग मशीन है। तो अब मालदी टॉफ में क्या किया, यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। अब इसमें वही हमने कॉलोनी मार्क कर ली। कॉलोनी मार्क करने के बाद जो हमने प्रॉपर कॉलोनी मार्क की है, तो मालदी टॉफ जो मशीन है इसकी ना एक डिस्क आती है, ठीक है, एक प्रॉपर स्लाइड जैसी डिस्क होती है वो, उसमें ना ऐसे छोटे छोटे वेल्स बने रहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कवर स्लिप वगैरह से या फिर उसकी मतलब जैसे भी आप जैसे आपको सूटेबल लगे, या फिर जो हमारी वो रहती हैं टिप्स रहती हैं पेपेट की टिप्स, उनकी हेल्प से हम यहाँ से कॉलोनी को पिक करेंगे और इसका जो एक बेल रहता है ना उसमें ऐसे करके स्मेयर बना देंगे, ठीक है। फिर इसकी एंट्री हम कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद इस डिस्क को मालदी टॉफ मशीन के अंदर रख दिया जाता है। तो जो हम काम यहाँ पे पेप्टोन वाटर से कर रहे थे, फिर ग्राम स्ट्रेन लगा रहे थे, फिर बैक्टीरिया का पता कर रहे थे और केमिकल रिएक्शन लगा रहे थे, उसके बाद बैक्टीरिया का पता कर रहे थे, तो वो ये सारा जो काम है ये मालदी टॉफ डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। जो 24 घंटे का यानी कि 12 से लेकर 24 घंटे का काम था वो मालदी टॉफ आपको एक आधे घंटे में करके दे देता है, ठीक है। यही काम है मालदी टॉफ का, इसलिए इसे ऑटोमेटेड का है ना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कल्चर मेथड तक का काम सेम है जैसा कन्वेंशनल में करते थे, लेकिन उसके बाद का जो हम स्टेनिंग कर रहे हैं, जो हम बायोकेमिकल रिएक्शंस लगा रहे हैं, वो डायरेक्ट मालदी टॉफ प्रॉपर करके आपको रिजल्ट एंड रिजल्ट दे देता है। उसमें बता देता है कि कौन सा बैक्टीरिया है इस स्पेसिमेन में, जो आपने यहाँ पे स्मेयर बनाया है उसमें कौन सा बैक्टीरिया है। उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे तो आप फिर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करोगे, जब आपको पता लग जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, सिंपल है। फिर क्या करते हैं हम, जो हमने पेप्टोन वाटर वगैरह बनाया है, या फिर जो भी हमारा वो रहता है ना कॉलोनी, पेप्टोन वाटर में जो हमारी यहाँ पे कॉलोनी रहती है, जैसे हमने 1-2 कॉलोनीज मार्क की हैं, ठीक है, सिमिलर कॉलोनी हम पिक करेंगे। उसके बाद छोटी छोटी हमारे पास वो रहती हैं कोवेट्स, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल सेलिन भरते हैं। नॉर्मल सेलिन में इस जो भी हमारी कॉलोनी है स्वैब वगैरह से उठा के इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको AST मशीन के अंदर रख देते हैं। साथ में इसमें एक एंटीबायोटिक का कार्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास AST के प्रॉपर एंटीबायोटिक कार्ड्स आते हैं वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें कोवेट में, और फिर मशीन में रख देते हैं। आपको एंड रिजल्ट मिल जाएगा पूरा कि कौन सी एंटीबायोटिक इस पे काम कर रही है। ये होता है AST ऑटोमेटेड कल्चर मेथड्स में, ठीक है। जो बैक्टेक है, ये बैक्टेक जो होता है ये स्पेशली ब्लड कल्चर्स के लिए यूज होता है, स्पेशली ब्लड कल्चर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड कल्चर बॉटल्स में ब्लड आता है उसमें कोई स्पेसिमेन है कि नहीं है ये आपको बता देगा बैक्टेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड कल्चर बॉटल आती है उसे हम डायरेक्ट इस मशीन में लोड कर देते हैं। इसमें फ्लोरेंस वगैरह का कुछ काम होता है, इसका प्रिंसिपल मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन उस अगर ब्लड कल्चर में कोई भी अगर स्पेसिमेन है, कोई भी अगर पैथोजन है, तो वो ये डिटेक्ट कर लेगा और ये बीप करने लग जाएगा। फिर आप उस ब्लड कल्चर बॉटल को निकालोगे, वही प्रॉपर फिर कल्चर लगाओगे उसका। इससे बस इतना पता लग जाएगा कि उसमें है कि नहीं है, ठीक है। फिर ब्लड कल्चर लगाओगे, फिर ग्रोथ आएगी। फिर अगर आपके पास मालदी टॉफ है तो आप कॉलोनी पिक करके उसका ये बना के चिप पे इसमें मालदी टॉफ में रख दो, रिजल्ट आ जाएगा तो AST में रख दो। अगले दिन आपको सारी कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए वो ससेप्टेबल है वो तब पता लग जाएगा। तो ये सारा ऑटोमेटेड कल्चर्स में होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर मेथड्स में ये सब है ही नहीं, और ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मेथड्स जो होता है ना, मॉलिक्यूलर मेथड्स में जैसे कि आपने सुना होगा PCR, ठीक है, RT-PCR, ये सब जो होता है हमारे लाइसा, ये सब जो है ना ये मॉलिक्यूलर मेथड्स में आता है, ठीक है। इनका हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें ऐसा कल्चर वाला कोई सीन नहीं होता। सीधा सीधा जो हमारे पास स्पेसिमेन आता है वो लेते हैं, उसमें थोड़े हम सोल्यूशंस को ऐड करते हैं और मशीन में लगा देते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं।
ठीक है। सो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया था कि हम किस तरीके से करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी लास्ट। उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्ट ही बनती है और कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल मेथड्स, कौन से हम बायोकेमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं लैब में, ठीक है।